بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سستی اور فارغ رہنا بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی اور فراغت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا۔ میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ ناظرین، ماہواری کی ایام میں جمع کرنے سے بانجھ پن کا خدشہ ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوے پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ کریلے کے بیج کھا لیا کریں کیونکہ کرواہٹ زندگی دیتی ہے۔ پھیپھڑوں کو صحت مند بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ تیز تیز چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں، اور جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں کبھی بھی خراش نہیں ہوگی۔ معدے اور مثانے کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چہرے کو دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کریں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی بروقت علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے وہ ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ کھجور اور شہد ایک ساتھ کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ ہمیشہ پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں، بہت سارا عرصہ بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کول ڈرنک، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے روزانہ میٹھے بادام کھا لیا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کھانے کے فوری بعد نہیں سونا چاہیے، ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی اور موٹاپا حاوی ہو جائے گا۔ ناظرین، دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر اور ٹانگوں میں درد سا رہتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسی غذا کھائیں جس میں آئرن اور وٹامن سی وافر مقدار میں ہوں، مثلاً خوبانی، آم، لیمو اور پالک وغیرہ۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیرا اور مالٹا کثرت سے کھائیں۔ اخروٹ آنکھوں کی بیماری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری کو روکتا ہے، چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔
गर्मी के मौसम में बुखार हो जाए तो कद्दू का जूस बनाकर 2 से 3 दिन तक पीते रहें। इंशाल्लाह बुखार जल्दी उतर जाएगा। जैतून और कड़वा तेल नीम गर्म करके कानों और आंखों की मालिश किया करें और साथ साथ पाँवों के तलवों की भी मालिश करें। नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और कम सुनाई देने का मसला ख़त्म हो जाएगा। चमड़े के सैंडल मैले हो जाएं तो नारियल के तेल से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। गिरे हुए अंडे को डबल रोटी की मदद से साफ करके उनको घर के बाहर दरवाजे के कोनों में डालें तो चूंटियां घर के अंदर नहीं आएंगी। जो लोग तेजी से रोटी खाते हैं उनके मैदे की बीमारियां ज्यादा होती हैं। नाज़रीन, रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और ना ही मैदे का कैंसर होता है। निहार में खजूर के ऊपर शहद लगाकर खाने से कद बढ़ने लगता है। गर्दन पर खारिश की जाए तो गला नहीं बैठता। पाँव की उंगलियों पर तेल से मसाज करने से अकल बढ़ती है। टमाटर खाने से कब्ज की शिकायत खत्म होती है और बदन में नया खून बनता है। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खाने से मोटापे से जान छूट जाती है। कलवंजी में सिरका मिलाकर खाया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। जो रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहे काम करें, थकेंगे नहीं। मछली का तेल इंसान को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। मछली के तेल का इस्तेमाल हमें सांस की तकलीफ से बचाता है। नाज़रीन, अमरूद के बीज खाने से चेहरा साफ और शफाफ होगा। तोरी की सब्जी ज्यादा खाया करें, इससे चेहरे पर चमक आ जाती है। औलाद की ख्वाहिशमंद औरतों को हरे रंग की बेडशीट बिछानी चाहिए। जवानी में आलू बुखारा खाओगे तो बुढ़ापे में इतनी ही ज्यादा जिस्मानी ताकत बढ़ेगी। दूध गाढ़ा करने के लिए चंद दाने किशमिश के डाल दें, दूध फौरी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और जल्दी बूढ़े ना हो तो आप चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाएं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भेड़ की चर्बी पकाकर खाओ। नाज़रीन, रोजाना खीरा खाएं, वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुबह रोजाना 7 खजूरें खाता है उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। ऐसे मरीज जो जहनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो दही का इस्तेमाल करें। ख्वाब में नमाज अंधेरे में पढ़ने वाला गमों से खुशी पाएगा। भुने हुए चने खाने से खांसी से निजात मिल जाती है। नाज़रीन, केला, बादाम और किशमिश दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज पिया करें। मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और बेपनाह ताकत पाएंगे। प्याज काटने के बाद हाथों पर लीमू का रस लगाकर धो लें। प्याज की बू हाथों से खत्म हो जाएगी। सांस का मसला और शदीद नज़ले की सूरत में अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है। दिमागी खुश्की, दिमागी कमजोरी, चक्कर और ज्यादा गुस्सा आने की सूरत में रोगने जैतून 3 चाय वाले चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पी लें। छुहारा पेट कम करता है और आपके गुर्दों को कुव्वत बख्शता है। ज्यादा सोने वाला शख्स दिमाग की कमजोरी का शिकार हो जाता है। दूसरों के एहसानात याद रखने वाले लोग तवील उम्र पाते हैं। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। अखरोट सर्दी की खांसी में बेहद मुफीद माना जाता है। किशमिश अमराज़े कलब के लिए बेहद मुफीद है। अजवाइन का इस्तेमाल बंदे को हमेशा जवान रखेगा। साबुत सुरख मिर्च को पीसते वक्त अगर इसमें चंद करतरे सरसों का तेल शामिल कर दें तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा हो जाता है। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दिया करें। नाज़रीन, पेट की चर्बी का मसला हो तो पानी में जैतून का तेल मिलाकर पिया करें। आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से निशानात खत्म हो जाते हैं। अगर बंदा पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी ले तो जिंदगी में कभी कमजोरी नहीं होगी। सुबह सवेरे जबान पर लहसुन लगाने से जुबान पर छाले नहीं पड़ते। मैदे की तेजाबियत खत्म करने के लिए अदरक, पपीता अपनी खुराक में शामिल करें क्योंकि यह हाजमे के लिए बेहतरीन है। पुदीने की एक टहनी को 1 लीटर पानी में उबालें और दिन में 3 मरतबा यह पानी पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। काली मिर्च कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीज जरूर किया करें। चावल के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए
کیونکہ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے کہ زہر پینا۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہوں وہ کشش والی ہوتی ہے، جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں اصل مشکلات تب آتی ہیں جب ہم اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے خواب جینا چاہتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بلکہ خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انجیر اور شہد کھا لیا کریں، آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر پھر کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آ سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چاول کم سے کم کھائیں، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ مرچوں کا استعمال کرنے سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ اگر رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر فوراً سو جائیں تو پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم ہرگز نہ پئیں۔ فریج میں پھل رکھے جائیں تو پانی میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد رہتا ہے تو یہ گردے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جانے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ لیمو پانی پیا کریں، جسم کی اور معدے کی گرمی دور ہوگی۔ ناظرین، دو زانوں بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لیں، بخار اترنے لگے گا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کریں، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کریں۔ ناظرین، جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو آپ اپنے ناخنوں پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جائے تو سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ سوتے وقت بار بار کڑوٹ بدلتے رہیں، آپ خوب صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ اجوا کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے اور جسم کو فربا کرتی ہے۔ امراض قلب میں اس کا استعمال مفید ہے۔ ناظرین، دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لگایا کریں، 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ اور جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرا لیں اور آپ 1 ماہ کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے۔ معدے کے جملہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے۔ غلطی اس کی نکالی جاتی ہے جو محنت کرتے ہیں، حاسدوں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ناظرین، معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سلاد کھانے سے آپ کو کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے
कपड़े को दूध में डबोकर धोएं। शीशा आलू के छिलके से साफ करो, चमक जाएगा। 4 चीजों से अल्लाह की तरफ से रिस्क बेतहाशा मिलता है। वालिदैन की खिदमत करना, बहुत ज्यादा नदामत इख्तियार करना अपने गुनाहों पर और रब की राह में हस्बे इस्तिताअत खर्च करना। कच्चे प्याज खाने से माहवारी साफ आती है और दर्द नहीं होता। हसद करने वाले शख्स के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। मेहमान की खिदमत करने से रिस्क में फरावानी हो जाती है। बर्फ खाने से जल्द बढ़ापा आता है। खजूर खाने से नफ्स कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। वक़्त पर सोने से टेंशन दूर हो जाती है। वक़्त पर सोने से हाफजा सही काम करता है। वक़्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक़्त पर सोने से बदन की सोजिश नहीं होती। प्याज के अरक में शहद मिलाकर खाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। प्याज का अरक निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खला के किसी भी तेल से खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से इतना गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। जो शख्स रंजो गम महसूस करे और उसे महसूस ना हो कि ऐसा क्यों है, तो उसे अपने सर को धोना चाहिए। सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करे। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन भी ज्यादा हो जाता है। जो रात को दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी खराब नहीं होता, लेकिन दूध पीने से 2 घंटे बाद सोना चाहिए। अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट और बादाम का इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है, बल्कि यादाश्त भी तेज हो जाती है। अगर भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम, काली मिर्च का पाउडर बना लें, एक बोतल में रख लें। रोजाना निहार मुंह 1 चाय का चम्मच खा लिया करो। हाफजा इतना तेज होगा कि भूली बात भी याद आ जाएगी। जो काम शुरू करने से कबल या नाफियुन मुतअद्दिद बार पढ़ लें, इंशाल्लाह वो काम आपकी मर्जी के मुताबिक नफ़ा बख्श पूरा होगा। किशमिश खाओ, यह हाई ब्लड प्रेशर से निजात दिलाती है। आलू का रस हल्के दूर करने के लिए बेहतरीन है। आलू को पतला काट कर आँखों पर रखें, इससे आँखों के गिर्द स्याह जिल्द और थकन दूर हो जाती है। जिस बच्चे को रोज़ाना मारपीट का सामना हो, ऐसे बच्चे की सलाहियतें दब जाती हैं। जिस बच्चे को मारपीट से सिखाया जाता है वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में एक बार आम खाने से आप खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। केला ज़हनी दबाव और बेचैनी से निजात दिलाता है। रोज़ाना वालिदैन के झगड़े देखने वाला बच्चा नाफरमान बन जाता है। मेथी दाना खाने से हैज़ खुलकर आता है। फार्मी मुर्गी पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन करती है। सोने से कबल अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। सूरह यासीन फजर के बाद पढ़ने से इंसान की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अगर बदहज़मी हो गई है तो 3 गिलास ठंडा पानी पी लेने से आराम आ जाता है। साइंस के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और हमारा बदन वायरस से पाक हो जाता है। नाज़रीन, 4 चीज़ों से अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलना कम हो जाता है। सुबह फजर से तुलुए आफताब तक सोना, वालिदैन की नाफरमानी करना, धोखा देना, मस्ती करना और नमाज पाबंदी से ना पढ़ना। अगर आपको टांगों में दर्द या लेकोरिया हो जाता है तो रोज़ाना सुबह को आपने 8 बादाम खाने हैं। आपको इन दोनों तकालीफ से निजात मिल जाएगी। पिसी हुई 1 चुटकी कलवंजी निहार मुँह खालिस जैतून के तेल के साथ खा ली जाए तो चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है। चेहरे पर कील महासे हों तो नारियल के तेल से मसाज करें, कील महासों से निजात मिलेगी। प्याज का अचार बदन में खून की कमी को दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादों को खारिज करता है। सांस के मरीज सुबह निहार मुँह प्याज का अरक पी लें, इस मरज में अफाका होगा। कान के शदीद दर्द हो तो सोने से कबल कान के बाहर की तरफ लहसुन का 1 टुकड़ा रख लें, सुबह तक कान दर्द और तकलीफ दूर होगी। लहसुन कान में इन्फेक्शन का बायस बनने वाले जरासीम का खात्मा करता है। कमर दर्द से बचने के लिए जब किसी जगह पर बैठें तो झुक कर बैठने से गुरेज करें, हमेशा सीधा होकर बैठें, इससे कमर का दर्द नहीं होगा। सोने के लिए बारीक तकिया इस्तेमाल करें। रात को उठकर पेशाब करने से
सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो पालक और अखरोट ज्यादा खाते हैं उनको दिमागी कमजोरी कभी नहीं होती। अगर बंदा खाने के दरमियान 3 घूंट पानी पी जाए तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक बाकी रहेगी। माल्टे का जूस मसूड़ों से खून रोकता है। योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नाज़रीन, दोपहर में मुबाशरत करने से पट्ठों की कमजोरी हो जाती है। वबा के दिनों में अगर प्याज खाने के साथ रखा जाए तो वबा से महफूज रहेंगे। किसी तकरीब में जाना हो तो मेकअप से पहले अंडे की सफ़ेदी में लीमू का रस मिलाकर लगाओ, चेहरे पर बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। माल्टा और लीमू का रस मोटापे को कम करने में मददगार है। रोजाना 1 माल्टा खाएं और सेहतमंद रहें। गर्म दूध पीना गहरी नींद के लिए मुफीद है। दूध का अमल नींद में बेहतरी लाता है और बदन को पुरसुकून करता है। खट्टी चीजें इंसान को जल्दी बूढ़ा करती हैं, बदन को दुबला करती हैं, पट्ठों और कुव्वत बाह के लिए मुज़र हैं। जब इंसान को छींक आती है 1 सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मोटी औरत रोजाना 3 ग़िज़ाएं खाए, खुश्क मेवाजात, अजवाइन और लीमू खाए तो 1 हफ्ते में दुबली हो सकती है। जिस घर में वालिदैन और बुजुर्गों को दुख मिले वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर बंदा वाक करने से कबल नीम गर्म पानी पी जाए तो जिंदगी में कभी कमज़ोर नहीं होगा। खाना खाते हुए भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना तमाम बीमारियों का इलाज है। निहार में 1 टुकड़ा मुंह में डाल लिया करो, 100 साल तक बदन में कमजोरी महसूस नहीं होगी। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चूस लेने से बदन पूरी जिंदगी कमजोर नहीं होगा। खजूर, अनार और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाएगी। कमजोर बदन वाले लोग हरीसा खाएं तो वो पहलवान बन जाएंगे। काले रंग का दुपट्टा ओढ़ने वाली औरतों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है वो हमेशा जवान नजर आती है। जल्दबाजी या गुस्से में किया जाने वाला फैसला नुकसानदेह साबित होता है। जब भी कोई फैसला करने लगो तो ठंडे दिलो दिमाग से करें। कमरे में नमकीन पानी भर कर रख देने से मच्छर नहीं आते। गुस्से वाली औरतों के होंठ बारीक होते हैं। ख्वाब टूट जाए और दोबारा इस ख्वाब में जाना चाहो तो बाईं जानब लेट जाओ। हकीम लुकमान की औरतों को चंद अहम नसीहतें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो हमेशा अपने खामन से रिज़्क़े हलाल का तकाजा करना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे तो सदका करती रहना। अगर दही बहुत खट्टी हो तो ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के जेवर भगो दें और थोड़ी देर के बाद धो डालें। जेवर बिल्कुल चमक उठेंगे। जिस्म की रग रग में ताकत डालने के लिए निहार मुँह 1 खजूर पीस कर गाय के दूध में डालकर पी लिया करें। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होगी। आपका बिस्तर जितना आरामदेह होगा आपको उतनी ही अच्छी नींद आएगी। औरत जितना चुप रहे उतनी ही अक्लमंद समझी जाती है और मर्द जितना बोले उतना अक्लमंद समझा जाता है। अगर 10 से 15 मिनट आप अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो आप जल्दी सो जाएंगे। फूल मखाने दूध में डालकर पिए, जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर होता है। जब आपके फ़ोन की बैटरी 10% या इससे कम हो तो आप किसी भी कॉल का जवाब देने से गुरेज करें, क्योंकि तब जो शुआएं निकल रही होती हैं वो 1000 गुना नुकसानदेह होती हैं। दही खाया करो, ये गैस और कब्ज से बचाता है। छुहारे दूध में पकाकर खाने से कुव्वते बाह में इजाफा होता है। अगर आपका पेट बढ़ गया है तो रोज़ाना निहार मुँह तकरीबन 25 मिनट के लिए पैदल चलने से पेट कम होना शुरू हो जाएगा। खजूर में मर्दाना कमजोरियों को ठीक करने के लिए कुव्वत होती है। इसके इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है। जो अफराद ज़्यादा काला लिबास पहनते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो खाना खाकर फौरी सो जाते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। चलते हुए कुछ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। दुबले अफराद नाश्ते में उबले हुए आलू का इस्तेमाल करें, कलील अरसे में मोटे हो जाएंगे। सांस की तकलीफ या एलर्जी हो तो सब्ज़ चाय जादुई तौर पर काम करती है। अगर बिला वजह दिल उदास और बेचैन हो तो फौरन 2 रकात नफल अल्लाह के हुजूर अदा करें, जल्दी सुकून मिल जाएगा। अगर थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाते हैं तो रोज़ाना 1 सेब खाया करें, हर किस्म की थकावट दूर हो जाएगी। अदरक की चाय उल्टी और मतली में मुफीद है।